Hi everybody, I'm Savitri of GMA classes. I have I'm going to teach you class 10 mathematics chapter 6 triangles. In my previous video, I had posted question 7 and 8 of exercise 6.2. Now, we'll continue with the remaining two questions of the exercise, question 9 and 10, where we have to apply the basic proportionality theorem and also the converse of basic proportionality theorem. Now, children, please don't forget to like, share and subscribe the channel GMAS classes and press the bell icon so that you get the notification whenever I post a chapter. And if anybody finds any difficulty anywhere, they may put it in the comment box. I'll be answering your queries. Okay, let's start. Exercise 6.2, question number 9. Question number 9. In this, the question is, I'll read the question, please listen carefully. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO. So let's try to draw a trapezium. ABCD is a trapezium. You know, trapezium is a quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel. So AB, CD. This is a trapezium in which AB is parallel to CD. And it's mentioned that its diagonals intersect at a point O. So let's draw the diagonals. DB and AD. These are the two diagonals. They intersect at O. Now, we have to show or to prove. What do we have to prove here? We have to show that AO upon BO is equal to CO upon DO. AO upon BO is equal to CO upon DO. This is what we have to prove or to show. So इसमें AO आ रहा है, BO आ रहा है. डेफिनेटली AO और BO तो अलग अलग ट्रायंगल्स में आ रहा है और CO और DO भी आ रहा है. सो हमको दो ट्रायंगल्स तो लेना कंपलसरी होगा इधर. तो हम ऐसा करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन इसमें कर लेते हैं. कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB, यानी OE पैरेलल टू AB. अब OE AB के पैरेलल ड्रॉ कर दिया तो वी कैन ऑल्सो से दैट OE इज पैरेलल टू DC, क्योंकि AB और DC भी पैरेलल है. देयरफॉर OE पैरेलल टू DC also, है ना. सो AB पैरेलल EO पैरेलल DC, इतना हो गया है. अब हमको ट्रायंगल ADB ले लेते हैं. ट्रायंगल ADB.
ADB. Now proof में in triangle ADB, ध्यान से देख लीजिए, ADB में AE अपॉन ED, AE अपॉन ED is equal to BO upon OD. BO upon OD. Why? In a triangle, a line parallel to two sides of the triangle divides the other two sides in equal ratios. So ABD में यानी BPT, Basic Proportionality Theorem by BPT यूज करेंगे तो OE इन दोनों के पैरेलल हो रहा है और OE AB के पैरेलल हो रहा है. ADB ट्रायंगल में AB के पैरेलल है OE. ये पैरेलल हो जाता है तो वो इक्वल रेशियोस में साइड्स को डिवाइड करेगा. सो AE अपॉन ED विल बी इक्वल टू BO अपॉन OD. लिखने में ध्यान रखना है, हमने A से शुरू किया, AE अपॉन DE, तो हमको इधर B से शुरू करना है, BO अपॉन OD. AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD. Let's take this as equation 1. Now, in triangle ACD लेते हैं, ACD. In triangle ACD, we have OE parallel CD. We have OE parallel CD. वो हमने पहले ही देख लिया है. So what can we write? Therefore, again let's use basic proportionality theorem. AE upon ED is equal to AO upon OC, क्योंकि OE is parallel to CD. So by basic proportionality theorem, we can write AE upon ED is equal to, दूसरा साइड क्या है, AO upon OC. AO upon OC. This is also by the property of basic proportionality theorem. इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं. अब हम देखो, इक्वेशन 1 में हो गया AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD. हमको सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगल, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स आएगा, लेकिन हमको सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगल्स ऐसा करना है कि हमको जो प्रूव करना है वो पार्ट्स इजीली आ जाए. सो AE अपॉन ED को हमने पहले किया BO अपॉन OD पर. अब एक और ट्रायंगल ले लिया ADC, उसमें भी AE अपॉन ED तो आ रहा है, तो हमको दूसरा पार्ट चाहिए AO अपॉन OC आ जाएगा. उसको फिर हम इंटरचेंज करके कर सकते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, सी दोनों के लेफ्ट साइड्स आर इक्वल. लेफ्ट साइड से इक्वल है तो हमको राइट साइड्स को भी इक्वल कर सकते हैं. सो BO अपॉन OD इज इक्वल टू AO अपॉन OC. अब इसमें क्या है, BO अपॉन OD इज इक्वल टू AO अपॉन AC, लेकिन हमको प्रूव क्या करना है,
AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अब देखो BO अपॉन OD चाहिए हमको, इधर नहीं वो मिला हुआ है, और AO और CO ऊपर है। तो हमको क्या करना है, इसको थोड़ा इंटरचेंज करते हैं और रीग्रुप करते हैं। रीग्रुप करके हम क्या कर सकते हैं, AO के नीचे BO को लाते हैं अपॉन BO। AO के नीचे BO को लाया तो BO की जगह पर OC को लाना पड़ेगा। AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD। ठीक, BO को इधर लेकर आया तो OC को उधर BO की जगह पर लेकर गया। सो रीग्रुप में ऐसा हो गया, AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD। ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। इसको रीग्रुप करके हमको एक मिला। सो हमने क्या किया, OE पैरेलल AB ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन में, और AB पैरेलल OE है तो ये OE CD का भी पैरेलल होगा, बिकॉज AB और CD तो पैरेलल है ही, बिकॉज ABCD से ट्रेपेजियम। अब पैरेलल होने की वजह से ये तीनों ही पैरेलल हो गया। तो हमको पहले ADB, ट्रायंगल ADB ले लिया, एंड OE इज पैरेलल टू AB, देयरफॉर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD इन ट्रायंगल ADB में। तो दैट इज इक्वेशन 1। अब हम लेंगे ट्रायंगल ACD लेंगे। ACD में क्या है, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। अब इसको इक्वेशन 2 कर लिया। अब ये दोनों इक्वेशन को केयरफुली देखेंगे, यू कैन सी दैट दोनों को लेफ्ट साइड्स इक्वल है, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED। तो लेफ्ट साइड्स अगर इक्वल है तो दोनों के राइट साइड्स इक्वल ही होगा। सो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो BO अपॉन OD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। लेकिन हमको प्रूव क्या करना है, AO अपॉन BO करना है। सो AO के नीचे BO आना चाहिए और CO के नीचे DO आना चाहिए। तो हमने इसको थोड़ा रीग्रुप किया, AO अपॉन BO, और BO को इसके नीचे लाए तो ये नीचे वाला OC ऊपर जाएगा। सो AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD, हेंस proved. This is question number 9. Now, let's try to do question number 10. Question 10. Question 10 में क्या है? The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. Now, it's given just a quadrilateral. A quadrilateral ABCD. A, B, C, D is a quadrilateral. पहले क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में ट्रेपेजियम दिया था, अब इसमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल दिया है, ट्रेपेजियम प्रूव करना है ना। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये डायगोनल्स ज्वाइन कर लिया, दे इंटरसेक्ट एट O, सच दैट
ए ओ अपॉन बी ओ, इसमें गिवन, तो क्या गिवन है इसमें? ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये दिया हुआ है इसमें, यानी ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये दिया हुआ है। तो देखो ए ओ एक किस में आ रहा है, डी ओ दूसरे में आ रहा है, तो हमको इसमें ट्रायंगल्स ध्यान से लेना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा। ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी। हमने ओ ई और ए बी को पैरेलल ड्रॉ किया है ना। अब ये जो गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ एंड सी ओ अपॉन डी ओ को हम थोड़ा रीअरेंज इसलिए करते हैं कि हमको प्रॉपर ट्रायंगल मिल जाएगा। सो री ग्रुपिंग और रीअरेंजिंग, हम क्या करेंगे, ए ओ अपॉन बी ओ को इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ को रीअरेंज करेंगे तो वी कैन गेट, हमको क्या मिल सकता है, ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन ये सी ओ इधर आ जाएगा, सी ओ इज इक्वल टू सी ओ नीचे आएगा तो ये बी ओ उधर जाएगा, बी ओ अपॉन ओ डी और डी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ, यानी ये सी ओ को इधर लेकर आ गए तो ओ भी उसकी जगह पर गया, है ना। सो इसको हम इक्वेशन 1 मान लिया। बाय रीअरेंजिंग ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। नाउ इन हम अब ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी में हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है, ओ ई पैरेलल ए बी, ओ ई पैरेलल ए बी। इसका रीजन क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया है, बाय कंस्ट्रक्शन। OE is parallel to AB. Therefore, by BPT हम क्या कर सकते हैं, DE upon EA, DE upon EA is equal to DO upon OB. See, DE upon EA is equal to DO upon OB. डी ई ले रहे हैं हम, डी से शुरू करते हैं तो हमको इधर भी डी से शुरू करना है। डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी मत लिखना, डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। दिस इज रीजन इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बीपीटी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको वापस थोड़ा रीअरेंज करते हैं और दिस कैन बी रिटन एज, ई ए को ऊपर कर दिया, ई ए अपॉन डी ई ए अपॉन डी ई इज इक्वल टू, इसको भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, ओ बी अपॉन डी ओ, यानी इधर भी रेसिप्रोकल ले लिया, इधर भी रेसिप्रोकल ले लिया। सो डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी विल इम्प्लाई ई ए अपॉन डी ई, इसका रेसिप्रोकल ले लिया,
तो राइट साइड में भी रेसिप्रोकल ले लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2, AO upon CO is equal to, देखो इधर ध्यान से देखोगे BO upon OD, इधर भी BO upon OD, OB को हम BO लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो BO upon OD, तो दोनों इक्वेशंस के राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड्स भी इक्वल होगा। So AO upon OC is equal to EA upon DE. AO upon OC is equal to EA upon DE. अब देखो इसमें now we can apply converse of BPT. By converse, see here, AO upon OC is equal to EA or AE upon ED. So AO upon OC is equal to AE upon ED. So you can see that if in a triangle a line divides the two sides in equal ratios, the line will be parallel to the third side. So by converse of BPT, we get EO or OE is parallel to DC. Also, EO is parallel to AB by construction. So, EO है, पहले कंस्ट्रक्शन से AO का पैरेलल हो गया, अब EO DC का भी पैरेलल प्रूव कर दिया बाय कन्वर्स ऑफ BPT. Therefore, अब क्या होगा, AB is parallel to DC. See, the line EO DC का भी पैरेलल है, AB का ही पैरेलल है. So, therefore AB will be parallel to DC. इसमें क्या है, the lines parallel to the same line are parallel to each other. ये क्लास 9 में पढ़ा है ना. Line parallel to the same line are parallel to each other. ये प्रॉपर्टी हम क्लास 9 में भी पढ़ा है. अब ये OE है, AB का भी पैरेलल है, DC का भी पैरेलल हो गया. AB के पैरेलल इसलिए कि हमने कंस्ट्रक्शन किया, DC के पैरेलल हमने अभी प्रूव किया. उसका मतलब OE is a line parallel to AB as well as CD. Therefore, AB और DC पैरेलल है. और if AB and DC are parallel, if AB is parallel to DC, ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. ये हमको प्रूव करना है. Did you all understand, children? I'll recap once again. इसमें दिया हुआ है AO upon BO is equal to CO upon DO. हमने थोड़ा सा उसको रीग्रुप करके AO upon CO is equal to BO upon DO कर दिया. उसके इक्वेशन 1. अब हमको कंस्ट्रक्शन किया हमने OE पैरेलल AB.
अब हमने ट्रायंगल ए डी बी लिया, ए डी बी में ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, ये अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हमने क्या क्या इसको भी थोड़ा रीग्रुप किया, यानी इसको रेसिप्रोकल ले लिया, ई ए अपॉन डी ई इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम देखेंगे तो बी ओ अपॉन ओ डी इधर भी है, बी ओ अपॉन ओ डी इधर भी है, राइट साइड्स दोनों के इक्वल है तो लेफ्ट साइड्स भी इक्वल होगा। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी मिल गया। सो ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ए ई अपॉन डी ई, यानी ये दो रेशियोज इक्वल हो गया। अगर ये दो रेशियोज इक्वल हो गया है तो ट्रायंगल ए डी सी में ए ई अपॉन ई डी और ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल हो गया है। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोल रहा है, अगर ये इक्वल रेशियोज में है तो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, सो ई ओ विल बी पैरेलल टू डी सी, ई ओ विल बी पैरेलल टू डी सी। हमको पहले ही पता है कि ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, दैट इज बाय कंस्ट्रक्शन। अभी प्रूव किया ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा ए बी इज पैरेलल टू ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। नाउ लास्ट ईयर हमने एक थियरम, एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर ए बी पैरेलल डी सी हो गया, ए बी पैरेलल डी सी हो गया, दैट मीन्स ए बी सी डी इज अ quadrilateral, ABCD is a trapezium. This is what we had to prove. That's all for today. Now, here we have come to the end of exercise 6.2. Children, please don't forget to like, share and subscribe. If anybody finds any difficulty, please feel free to put it in the comment box. Thank you. Bye-bye.